Hello guys, welcome back to Ansarkari. So in our previous interaction, we discussed about the top three topics, that is ideal typical bureaucracy, idea on social stratification, and structure of authorities. So in continuity of our second topic, that is structure of authorities, today we are talking about authorities and its types. So according to you, what is authority? So here I want to you can comment in our comment below so I can see. So the types of authority. Authority is, we can say that authority is subtype of power, but authority is more logical in sense than power. So next, are three types of authority. And who said that there are three types of, according to Weber, there are three types of authority. First, traditional authority. Second, charismatic authority. Then rational legal authority. Then ट्रेडिशनल अथॉरिटी. सो जैसा कि हमें समझ आ रहा होगा, ट्रेडिशनल वर्ड से ट्रेडिशनल क्या है कि वो कस्टम्स एंड बिलीव्स जो कि हमारी फॉर्मर यानी कि पास्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे. और सेकंड उन्होंने बोला चेरिस्मेटिक अथॉरिटी. चेरिस्मेटिक मतलब चेरिश्मा में बिलीव करते हैं और बिलीव इन मिस्टिसिज्म, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सुपर नेचुरल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, लाइक बिलीव इन गॉड. And the next one is rational legal authority. So rational legal authority, we link it with the today's phenomenon, that is we link it with the concept of bureaucracy that we have discussed in our previous lecture. So you can, for more understanding of the topic, visit previous video. So now we can take in brief key what according to Weber is traditional authority, charismatic authority, and rational legal authority. So on traditional authority, he says that there is virtue in the sanctity of age-old rules and power. Okay. Then here, leader is a personal master and administrative staff contain personal retainers based on personal loyalty. तो यहाँ पे क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वहां पे भी कंसेप्ट ऑफ पावर एंड रूल्स था, लेकिन क्या वहां पे इतना ज्यादा हायरार्की थी या नहीं थी. तो हम बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में हायरार्की जो थी वो कम थी इन द सिस्टम. सो हायरार्की इन द सिस्टम लेस थी, यानी कि जो एक सिंगल पर्सन होगा वही रूल करेगा एज अ होल टू फुल सोसाइटी. सो यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला कि जो एक पर्सनल मास्टर है वहां पे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है. देन नेक्स्ट इज देयर आर ब्यूरोक्रेटिक रूल्स टू बी फॉलोड. लेकिन हमें क्या करना चाहिए था, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए था. लेकिन ड्यू टू, अब जहाँ पे जैसे कि ट्रेडिशनल स्टाफ है वहां पे, according to Weber, traditional staff lacks different spheres of competence and clear hierarchy and no regular system of appointment. It is also missing technical training. So इन्होंने इसका क्रिटिसाइजेशन कर दिया कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्टाफ था उसमें क्या क्या मिसिंग था, यानी कि नो क्लियर हायरार्की है, कोई रेगुलर सिस्टम भी नहीं है, ना ही कोई एग्जैक्ट ट्रेनिंग है कि हाउ टू एक्ट इन द डिपार्टमेंट. सो एक तरीके से वहां पे क्या हो रहा है, रूल बाय एल्डर्स चलता था वहां पे. तो और मोस्टली क्या थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी. तो फिर रूल्स क्या हो गए, पैट्रियार्कल रूल्स हो गए. तो उसके लिए हमारा कीवर्ड क्या होगा, जेरेंटोक्रेसी. So you are right, talking about sociology, so you must know the meaning of these words so you can use it anywhere while writing the answers of sociology. So तो एक तरीके से उन्होंने बोल दिया कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ना वो हमारा डेवलपमेंट के लिए, एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी के लिए बैरियर है. तो उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी बना दिया, लेकिन वो उस तरीके उसमें क्रिटिसाइजेशन कर रहे हैं उनके आइडियाज को कि वहां पे क्या क्या कमी रह गई. तो हमें नेक्स्ट स्टेज पे मूव करना पड़ा, दैट इज चेरिस्मेटिक अथॉरिटी.
So it is kind of cultural, structural impediments which is seen in society other than Western world. That is why capitalism is integral to rational society because it is rational economic structure. So patrimonialism can help in the rise of primitive capitalism, but not whole structure. So यहाँ पे क्या है, यहाँ बोल रहे पैट्रिमोनियलिज्म, यानी कि जो हमने जैसे कि बात किया कि पैट्रियार्कल रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वही क्या करेंगे कि तो वहां पे हर सोसाइटी में मेन एम क्या होता है कि हमें मोर प्रॉफिट चाहिए, तो हम वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में. So not patriarchal society, it is capitalistic society. That's where aims was that profit making only. So here, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल की हम बात करें, जहाँ पे कुछ कस्टम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहाँ पे पैट्रियार्कल कल्चर है, तो वो उसमें भी कैपिटलिस्टिक फीचर है जो कि हमारी रेशनैलिटी के कंसेप्ट में भी आएगा, चेरिस्मेटिक में भी आएगा, यानी कि वो हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि प्रेजेंट as well as in future and in the modern era that exist, that is capitalism. So इन्होंने तीन, इनको पैट्रिमोनियलिज्म की पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं कि पैट्रिमोनियलिज्म इज ट्रेडिशनल डोमिनेशन with administration and military force that are purely personal instrument of masters. यानी कि जैसे हम बोलते किंग्स, जैसे कि अकबर रहा, या फिर हम बोल सकते हैं दिल्ली से वो मुगल में भी आए थे, औरंगजेब है, ये सारे क्या है, इनके पास अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन थी, मिलिट्री फोर्स थी, उन्होंने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलाया था. तो ये एक तरीके से क्या शोकेस कर रहा है, पैट्रिमोनियलिज्म, यानी कि वहां पे जो पर्सनल थिंग्स है ना, यानी कि पर्सनल जो वो जस्टिफाई कर रही है व्हाट इज अबाउट पावर एंड अथॉरिटी. सो एक तरीके से वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास्टर है. देन प्राइमरी पैट्रियार्कलिज्म, तो पैट्रियार्कलिज्म तो आपको पता होगा कि पैट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेशन. सो प्राइमरी, प्राइमरी जब वर्ड आ जाता है यानी कि इट मींस दैट इनहेरिटिंग द पोजीशन, यानी कि हेरिडिटरी हो गया. Then next word we can say in the capitalism society, that is feudalism that exists in, so it is based upon land grants. Like यहाँ पे क्या होता है, मैं ड्रॉ करती हूँ, wait. मान लो एक ये पूरी वो है, यहाँ पे एक लैंड होगी, फ्यूडलिज्म समझाते हैं, एक मल्टीपल लैंड्स होंगी इस तरीके से. तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, एक पूरे इंटीग्रेशन ऑफ लैंड ना लेके सेपरेट सेपरेट रूल कर रहे हैं लैंड के बेसिस पे रूलर्स. तो दैट इज वी कैन कॉल्ड इट एज फ्यूडलिज्म, जो कि उनका इकोनॉमिक भी शोकेस कर रहा था. ठीक है. देन नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चेरिस्मेटिक अथॉरिटी. तो चेरिस्मा बिलीव यानी कि मिस्टिक बिलीव और बिलीव इन सुपर नेचुरल फोर्सेस. तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि it is more dependent on the group of disciples and the way they define charismatic leaders. यानी कि टोटली ये है बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि आप क्या सोचते हो, क्या आप किसको अपना डिसाइपल मानते हो, इस तरीके से. So the most crucial part is the process by which he becomes completely different from ordinary people. So according to Weber, charisma is revolutionary force which is one of the most important forces in the social world. तो चेरिस्मा को वेबर ने क्या बता दिया, एक रेवोल्यूशनरी फोर्स है, यानी कि जो चेंज लाने की बात कर रही है. तभी तो हम रेशनल लीगल अथॉरिटी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि इस पे, तो फिर उन्होंने किस किस चीज पे, तो प्रीवियस स्टेज पे भी डालने का और नेक्स्ट वन पे भी डालेगा अपने से. तो थ्री स्टेजेस हमने पढ़ी थी, ट्रेडिशनल, चेरिस्मेटिक एंड लीगल. तो पोस्ट थ्रेट ऑन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तो इससे क्या शोकेस हो रहा है कि जो आइडियाज है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है. एंड देन नेक्स्ट रेशनल लीगल अथॉरिटी, तो जैसे कि वो बोल रहे हैं कि जो चेरिस्मेटिक है वो रेवोल्यूशनरी फोर्स है,
जिससे कि चेंजेस आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे, एक्टर्स के माइंड पे भी आ रहा है, और इंटरनल रीओरिएंटेशन भी हो रहा है, ठीक है, लीडिंग टू रेडिकल अल्टरेशन ऑफ सेंट्रल एटीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्शन which completely new orientation all attitude towards the different problems of the world। एक तो यहाँ पे हम टोटली बोल सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी फोर्स है वो क्या ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है इन द सोसाइटी। तो इन द सोसाइटी लाएगा, उसमें इंडिविजुअल भी है, उनके बिलीफ सिस्टम भी है, एक्शंस भी है, सो उनका जो वे ऑफ एटीट्यूड है टू एक्ट ऑन डिफरेंट रिगार्ड्स वो चेंज होता जा रहा है। तो फिर इसलिए उन्होंने इस चेंज को क्या बोल दिया, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि एक थिंग दूसरे पे डिपेंड थी, दूसरी तीसरे पे, लेकिन हर एक में आइडियाज क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। सो हियर एज पर वेबर, so here as per Weber, so as per Weber, charisma is internal revolutionary force, or whereas formal rationality is external force, changing the structure of society first and finally thoughts and action of the individually। For example, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर का। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस है ना जो कि उसको एक्ट करने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन जब हम इसमें एक्सटर्नल जब वो फाइट अप करते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मल रेशनैलिटी दिखाई दे रही है जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए बिलीव करती है। सो इन ऑर्डर टू डिफाइन चेरिस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटिनाइजेशन ऑफ चेरिस्मा ही sought टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ चेरिस्मेटिक। तो वो बिलीव करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा चेरिस्मेटिक अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। तो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू वेबर इट इज इंफीरियर रेदर देन एक्सटीरियर वन। सो इंफीरियर का में क्या क्या आ जाएगा चेरिस्मेटिक लीडर के लिए, आइदर इट बी रूटीन और इनकम हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, जिसमें टोटली क्या होगा, इनफॉर्मेलिटी होगी, यानी कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, वो अपना इंडिविजुअल है, वो अपने बिहाफ पे एक्ट करेगा। तो जैसे कि हम थिंक मतलब अपने ऑथर्स या फिर मतलब ऑथर्स नहीं बोलेंगे, कोई भी फिलोसफर्स रहे हैं तो उनके सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम थे जहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो वो अपने आइडियाज को प्रमोट करते थे अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग। सो हियर दैट वी कॉल्ड देम एज चेरिस्मेटिक, ठीक है। देन वेबर आल्सो डिस्कसेस व्हाट हैपेंस टू अ चेरिस्मेटिक अथॉरिटी व्हेन अ चेरिस्मेटिक लीडर डाइज। तो क्या होगा उस अथॉरिटी को अगर जो चेरिस्मेटिक लीडर है वही डाई अप हो जाए, तो इससे क्या होगा, वो अंदर से बिल्कुल टूट जाएगा जो चेरिस्मेटिक सिस्टम है, कि जिसकी नींव ही सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई है, तो अंदर से ब्रोकन हो, तो उसके फॉलोवर हो सकता है अनदर उसमें किसी और फॉर्म में अपना बिलीफ ला दे, किसी और के लिए सर्च अप करेंगे, नए रूल्स या रेगुलेशन, मतलब हर चीज को अलग अलग देखेंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सोसाइटी में। तो या तो वो इन द वे हो सकता है कि ट्रांसफर चेरिस्मा सिंबॉलिकली सिंबल्स की फॉर्म में जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी को अथॉरिटी दे दी अलग पर्सन को, या फिर कोई रिचुअल टेस्ट हो सकता है जिसके बिहाफ पे हम करें कि हमें नया लीडर चाहिए। सो वेपर बिलीव दैट मॉडर्न वर्ल्ड charisma will be rooted in the direction of rational legal। so जो वो चेंजेस जो वो बोल रहे थे या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो आ रहे हैं वही पुशअप कर रहे हैं कि हम मूव डाउन कर दे नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज रेशनल लीगल अथॉरिटी। सो फाइनली रेशनैलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इरिवर्सिबल फोर्स, यानी कि हम ना तो पीछे जा नहीं सकते ना ही उसको बैकअप कर सकते हैं, जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट इज rational legal authority। So rational legal authority in a continuous way pose threat to other forms, that is other forms in the way भी कह सकते हैं कि हम traditional and charismatic, and finally in future they may be a world of uncontested hegemony। So we can tell that कि जो हमारे ट्रेडिशनल थी या फिर हमारा ट्रेडिशनल हो गया, चेरिस्मेटिक हो गया, इसमें हेजिमनाइज सोसाइटी थी, तो
रेशनल लीगल सिस्टम के आने से क्या हुआ कि जो ये हेजिमनी थी वो टूट गई है, मतलब ब्रोकन हो गई। सो सो तो इसके लिए इन्होंने कीवर्ड यूज किया, लीडिंग टू आयरन केज ऑफ रेशनलाइज सोसाइटी। तो रेशनलाइज सोसाइटी यानी कि इम्पोर्टेंट है, लॉजिकल सेंस है, साइंटिफिक थिंकिंग बेस्ड है, ठीक है। रेशनलाइज सोसाइटी के बिहाफ पे हम ये वर्ड बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो रेशनल लीगल अथॉरिटी वाला आइडिया है वो सिर्फ मैक्स वेबर ने ही बोला है, इसमें हम विल्फ्रेड प्रेटो का भी नाम ले सकते हैं। एंड in our next slide we will discuss that कि ब्रेगर ब्रूकर और इन्होंने भी इसके बारे में, कार्लबर्ग, इन्होंने भी रेशनलाइज सोसाइटी के बारे में बात की है। एंड द ओनली होप would be isolated charismatic individual who would challenge a powerful bureaucratic machine, but it is very difficult. So next point is that rationalization is at the core of Weber's substantive sociology, which focus on specific and peculiar rationalism of Western culture and its unique and origin and development. But there were different definitions, means, and value neutrality or value rationality, but they are type of social action and basis of Max Weber concept of rationalization. Because Weber is interested in regularities, pattern follow-up of action within civilization, institution, organization, strata, class, group. So, तो वेबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिफाइड रेशनैलिटी होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम। अब प्रीवियस चेरिस्मेटिक में क्या था, इंटरनल फोर्स थी, लेकिन रेशनल लीगल अथॉरिटी में क्या होगा, फर्स्टली हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एक्शन होगा, एक्सटर्नल वे से होगा, जिसमें क्या होगी, ऑब्जेक्टिफाइड रेशनैलिटी होगी रेदर देन सब्जेक्टिव, कि सिर्फ नाम के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिफाइड यानी उनको फॉलो भी किया जा रहा है। देन एक सिस्टमैटिक वे होगा, एक एग्जैक्ट पैटर्न होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, या तो वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फिर क्लास हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो। तो उन्होंने क्या है कि जो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट था ना, वो जो वेबर का सब्सटेंटिव सोशियोलॉजी था उसका एक कोर पार्ट था। जैसे कि हमारी अर्थ है, उसमें क्रस्ट मेंटल कोर, तो जो हमारा इनर पार्ट क्या होगा जिसके ऊपर पूरा टिका हुआ होता है वो क्या है, इसमें वेबर के अकॉर्डिंग है रेशनलाइजेशन। सो दैट ही टॉक्स अबाउट रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे स्टीफन कार्लबर्ग का नाम आता है, जो कि रेशनैलिटी कंसेप्ट उन्होंने भी दिया था। तो उन्होंने इसको क्या बनाया, 4 टाइप्स बताया। और उन्होंने क्या बोला कि ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस है, या फिर इससे क्या है, हम एनालाइज कर सकते हैं, एक तरीके से टूल की तरह काम करेगा टू स्क्रूटनाइज हिस्टोरिकल फेट्स ऑफ रेशनलाइजेशन बट एज अ सोशल कल्चरल प्रोसेस। सो हियर वी टॉक अबाउट प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, यानी कि इन्होंने 4 टाइप्स बोले हैं रेशनैलिटी के, देन थ्योरेटिकल, देन सब्सटेंटिव रेशनैलिटी, देन फॉर्मल रेशनैलिटी। सो फर्स्ट इज प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, प्रैक्टिकल वे, यानी कि नॉर्मल से समझ आ रहा है कि जो रेशनैलिटी या फिर लॉजिकल थिंकिंग लगानी है वो हमें अपनी प्रैक्टिकल वे में। सो इधर इन्होंने क्या बोला है, एवरीडे लाइफ दैट व्यू एंड जजेस वर्ल्डली एक्टिविटी in relation to individuals purely pragmatic and egoistic interest, यानी कि वो क्या हो गई, एक सब्जेक्टिव वे हो गई। सो इन practical rationality it is pragmatic thinking in universal applied rules and regulation. So same, the pragmatic way of thinking we require in this examination, so we can easily link up it with the modern era and in the competitive market as well. Then second one is theoretical rationality. It involves cognitive effect or efforts rather than through action. तो theoretical में क्या होगा कि जो बनी बनाई बातें हैं उसी पे सब कुछ टिका हुआ है, यानी कि वो ऑलरेडी उसमें प्रैक्टिकलिटी का कोई स्कोप नहीं है, तो हम उसमें कोई डिडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं। सो इसमें एग्जांपल हमने देखा, लॉजिकल डिडक्शन हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है, एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेलिटी हो सकता है। देन थर्ड इज सब्सटेंटिव रेशनैलिटी। सो सब्सटेंटिव रेशनैलिटी जो है वो प्रैक्टिकल रेशनैलिटी की तरह ही है,
ordering action into pattern through a cluster of values. It involves choice of means to end within the context of system values, and all value system are rational. So substantive rationality or practical rationality to some extent सिमिलर है, लेकिन तो उसमें क्या होगी, हमारे पास जो वैल्यूज है ना, जब हम उसको ले आएंगे उस कंसेप्ट के अंदर रेशनैलिटी मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं substantive rationality. Then next one is formal rationality. That means and calculation, यानी कि एक फॉर्मल वे से चल रहा है, यानी कि आप कोई भी इनफॉर्मल एक्शन नहीं ले सकते, आपको रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करने होंगे और तभी कोई ना कोई एक्शन होगा, तो दैट इज फॉर्मल रेशनैलिटी. सो हियर सेम ब्रूबेकर आल्सो टॉक अबाउट इट. सो ब्रूबेकर ने कहा कि जो रेशनैलिटी है वो किसके कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है कैपिटलिज्म के कंटेक्स्ट में. फॉर्मल लॉ हो गया, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, it's objectified, institutionalized, super individual form in each sphere. So rationality is embodied in social structure and confronts individual as something different. So ब्रूबेकर ये बोलना चाहते हैं कि हमें कोई भी रेवोल्यूशन चाहिए, लेकिन विद एम्बॉडीमेंट चाहिए, ना कि कोई टेक्निकल वे कोई भी नहीं जा रही है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलिए. सो उन्होंने रेशनलाइजेशन को और ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से रिलेट किया है. सो ब्यूरोक्रेटिक रेशनलाइजेशन इज लाइक इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन विद टेक्निकल मीन्स, because it first changes the material and social order, and through them people, by changing the condition of adaptation, perhaps the opportunity for adaptation through rational determination of means and ends. So here totally we can say in a summary that Weber discussed about 3 types of authority, and through them he wants to showcase social changes in the society by different means, either be it by values or practical approach and so on. So उन्होंने पहले सिर्फ यही बोला कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो पहले आएंगे मटेरियल में, यानी कि जो उसकी नीड होती है, फिर सोशल ऑर्डर में, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे लोग उसको सीखेंगे या फिर अडेप्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, पीपल के अंदर भी उनके बिहेवियर में इंडल्ज हो जाएगी, तो उसी से क्या होगा, रेशनल सिस्टम बनेगा, तो रेशनल एक्शन प्रमोट होंगे. So that's all for today. Then now in the same, we always discussed one keyword per day. So next one slide, today we talked about reflexivity. So what according to you is reflexive? So let's take just a basic science example. For example, you touched your hand to some heating objects, then you continuously put your hand back. That is the quick response, यानी कि जो हमारा आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपके माइंड ने एक्ट किया नर्वस सिस्टम में, और आपने रिपोर्ट किया कि मुझे बैक कर लेना चाहिए क्योंकि गर्म है, ठीक है. तो सेम रिफ्लेक्सिविटी इज रिलेटेड विद रिफ्लेक्टिव कंसेप्ट. तो एक तरीके से क्या हो गया, रिफ्लेक्सिविटी इज इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव, यानी कि वो कुछ ना कुछ दर्शाना चाह रहा है. तो हम सोशियोलॉजी में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी में हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई आइडियाज है, मेरी कोई थिंकिंग है, और मैं उसके बिहाफ पे एक्ट करूंगी, उसी के बिहाफ पे कोई मुझे मॉनिटर करेगा, तो वो क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्टिव एक्शन हो गया, यानी रिफ्लेक्सिविटी हो गई कि भाई जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो इम्पेडिमेंट्स क्या थे, तो वो जो चीज होती है वो होता है रिफ्लेक्सिविटी. सो first point is reflexive with regards to sociology is reflection including self in thinking and responding with. So ऐसे ही अब एक थिंकर थे जिनका नाम है गोफमैन. उन्होंने क्या बोला कि जो रिफ्लेक्सिविटी का कंसेप्ट है ना, वो क्या है, उन्होंने इसको रिलेट कर दिया इम्प्रेशन मैनेजमेंट में, कि वो कहना चाह रहे
जैसे आप अपने आप को दर्शाओगे ना, जैसे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, वो एक तरीके से क्या है, इम्प्रेशन है, और उसी से आपका शो होगा कि आप मैनेजमेंट सिस्टम को जानते हो या नहीं जानते हो। द नेक्स्ट इज हारोल्ड कार्पिंटन। तो उन्होंने इस टर्म को थोड़ा अलग तरीके से लिया, और उन्होंने कैसे रिलेट किया, द वे इन विच ऑर्डिनरी पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सोशल कंटेक्ट, यानी कि जो ऑर्डिनरी कॉमन पीपल जो सोचते हैं उस कंटेक्स्ट के बारे में, किसी सोच इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ दैट। तो जो टोटल कंटेक्स्ट है ना, जिसमें लोकल पीपल भी आएंगे, और कुछ जो कि एक तरीके से उसके, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिनको उसमें नॉलेज होगी वो भी उसमें होंगे। तो जब हम पूरे को होल को लेके चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना सोशल कंटेक्स्ट की, वो उसी के अंदर आ जाती है, तो वो कॉमन मतलब पूरे में आ जाती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोल देते हैं, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी में आ जाती है। तो उससे इन्होंने रिलेट किया है। सो हम इन टोटलिटी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिविटी एज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी टू इटसेल्फ इज वाइड स्प्रेड थीम इन सोशियोलॉजिकल theorization, though it often gives rise to endless and unproductive कंटेम्पलेशन। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि इससे हमें रिफ्लेक्सिविटी से ये हेल्प होती है कि हमें प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, इंक्रीज होती है, रेदर देन रिडक्शन, और कभी भी एंड नहीं होता, यानी कि एक तरीके से एंडलेस कंसेप्ट हो गया। सो रिफ्लेक्सिविटी ऑफ सोशियोलॉजी, हम in context of in our previous lecture we use it with the different types of subject, that sociology is convergent as well as divergent with other subjects like anthropology, political science, economics, and so on. So thanks for watching our video, and let's meet in our next session. Please like, share, subscribe our channel.